So if I talk about previous class, we have learnt about artificial intelligence, and the topic that we have covered in the last class was Excite. Okay, so in that topic Excite, we have learnt about that what are the different areas and what are the different things in which AI is included, and in that chapter we basically have learnt that what is the scope of AI, like how can we excite other people about AI. Okay, so this thing we have learned in Excite unit. Now we are starting our second unit, that is Relate. So I'm just reminding you that there are 5 units in Introduction to AI. This is your unit 1 and it has 5 units. First is Excite, second is Relate, then third is Purpose, then fourth is Possibilities, and fifth is AI ethics. So there are 5 units. Okay, so today what we are doing, we are starting the second unit, that is Relate. So this unit is basically tell you that what are the different areas in which you can relate yourself with artificial intelligence. Because see, it's a very much non-relevant question these days that in what areas computers are used. So we can observe that in every area computers are being used, right? But there are certain places wherein only artificial intelligence is being used, right? Not in all areas, but most of the areas are being covered up to a certain extent using artificial intelligence. So now we are talking about the industries wherein we have found artificial intelligence, and we are observing that these are the area in which artificial intelligence is doing some great job. So the first thing is artificial intelligence is business. See, business means this is the most important area in which artificial intelligence actually works. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं बच्चों, तो बिजनेस का मतलब सब कुछ होता है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, मार्केटिंग. सो एवरीथिंग इज बिजनेस. जब आप कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं तो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जब आप उसे बेचते हैं तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जब आप उसकी मार्केटिंग करते हैं सो दैट पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट, सो मार्केटिंग हो रही है, फाइनेंस. सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बिजनेस. So there are certain areas wherein this artificial intelligence is being used. I am giving one example. For example, you go to some online website, online portal, wherein those portals which are selling some items. So I am talking about Amazon, right? So what do you want? What will you do if you purchase a certain thing? Like I have given you an example, I believe earlier, that if you are purchasing a mobile phone. So when you purchase a mobile phone and you select for a particular model, they are providing you the covers also. Okay, with this mobile phone you can go with this color, this cover also, right? So ये सारी चीजें भी आप लोगों को वो साथ साथ देते हैं. So based on the mobile you have selected, they are providing some accessories related to this mobile to you, right? So they are using artificial intelligence. They are analyzing that what type of product you are purchasing. Accordingly they are suggesting you other products, right? So it's about servicing product services. It's about providing products and services to you. Now AI in banks. Okay, see, before going into banks artificial intelligence, I just want to tell you one thing. नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, पीपल आर डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. ओके, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस का मतलब एवरी बिल यू आर पेइंग थ्रू सम एप्स, सम प्लास्टिक मनी, सम नेट बैंकिंग फैसिलिटीज, everything that you are purchasing. For example, you are doing some online purchasing, you are paying through net banking or card or whatever online facility you are taking. So what we are doing, most of the transactions we are doing over internet, right? Now यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैं क्या कहने जा रहा हूँ. आप एक सिनेरियो एज्यूम कीजिए कि जहाँ पे आप जो भी कुछ परचेज कर रहे हैं, वट एवर यू आर परचेजिंग थ्रू बैंक. इट मीन्स bank knows then on what items you people are purchasing, you people are spending, right? On what head you people are spending.
Now think that someone always purchases some good things, something which is branded, something which is costly, something which is of luxurious item. So every time you are doing transaction over internet, bank is coming to know that what is your buying capacity. I'm giving one example. For example, someone is using internet service, someone is using online banking from last 3 years, and he has purchased a basic mobile phone, right? Some basic things, some normal clothes costing less amount. So he is purchasing through online, but the way or the product he is selecting, it is not very much costly. This is scenario one. And on the other hand, there is someone who is purchasing some branded items, some good items like mobile phones they are purchasing very costly, and clothing they are going for, they are costly. तो वहाँ पे क्या है, on the basis of the transaction you people are doing, they will make a database for you. They can make, they will नहीं, they can make, right? So आपकी जो टेंडेंसी है वो पता चलेगी, तो उसी हिसाब से आपकी बाइंग कैपेसिटी डिसाइड की जाएगी. उसी तरह से आपको बैंकिंग ऑफर मिलेंगे कि ओके नाउ यू कैन गो फॉर अ क्रेडिट कार्ड and the limit of the credit card is say 10 lakhs rupees, since you are purchasing through bank and whatever you are purchasing is costly item. So it means they are thinking that you are capable of paying good amount, तो आपको उसी हिसाब से वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह की चीज़ें हम बैंकिंग में डालते हैं. लेकिन एक बात और है इसके साथ जो जरूरी है कि हम वी आर इन अ वल्नरेबल कंडीशन. हम बहुत ईजिली डेटा सप्लाई करते हैं. आप लोगों को मालूम है, हम जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ओवर द इंटरनेट, over the computers, over the apps, एक्चुअली हम अपना डेटा शेयर कर रहे होते हैं. ठीक है. आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो है डेटा. जैसे पहले बोलते थे कि ऑयल इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है ना. हर समय हर चीज़ का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है. तो आजकल जो इम्पोर्टेंस है उसकी डेटा की इम्पोर्टेंस है. हर समय या तो हम डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं या हम डेटा को प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे अगर मैं इस क्लास की भी बात करूं इस समय, सो वी आर प्रोवाइडिंग डेटा, वी हैव टेकन डेटा फ्रॉम समवन एंड वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू, राइट. तो एवरी टाइम यू आर प्रोवाइडिंग डेटा. अभी दिस इज ऑल्सो डेटा दैट व्हेन आई एम सेइंग सेंड योर अटेंडेंस, तो भी मेरे पास एक डेटा कलेक्ट हो रहा है कि कितने बच्चे उस पर्टिकुलर तारीख को आए थे. तो हर समय हम डेटा को भेज रहे होते हैं या हम डेटा को रिसीव कर रहे होते हैं. तो बैंकिंग भी क्या करते हैं, दे हैव डेवलप्ड सम चैटबॉट्स. आप लोगों को मालूम होगा ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप करते हैं तो देयर इज नो वन सेटिंग हु इज आंसरिंग योर क्वेरीज. देयर आर चैटबॉट्स, दे आर आंसरिंग एंड दे आर चेकिंग योर बाइंग कैपेसिटी. जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था कि जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके बेस पे आपकी बाइंग कैपेसिटी को डिसाइड किया जाता है. ऑलराइट. तो इस तरह से आपके फाइनेंशियल ऑपरेशन, स्टॉक ऑपरेशन, इन सबको चेक किया जाता है और आपको उसके हिसाब से सजेशंस दिए जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. ठीक है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, उसको इजी और एफिशिएंट बनाने के लिए किया जा रहा है. बट वो इजी और एफिशिएंट बनेगा कैसे? जब तक आपके डेटा को एनालाइज नहीं किया जाएगा तब तक वो इजी नहीं बन पाएगा. उसके बाद अल्फागो के बारे में हमने पहले भी बात किया था. तो अल्फागो जो है इट्स अ गेम, ये एक बोर्ड गेम है एक तरह का, राइट. जो भी बोर्ड्स के गेम होते हैं ना, जो बोर्ड पर रख करके खेले जाते हैं, सो इट्स अ बोर्ड गेम. So it is developed by DeepMind Technologies, right? So ये बोर्ड गेम है. ये भी बेसिकली इस तरह से बनाया जाता है कि आपकी जो भी आपका डेटा आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप खेल रहे हैं उसके बेस पे ही आगे डिसीजन लेता है और उसके बाद आपके आंसर्स को निकालता है कि नेक्स्ट जो मूव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पर एक और खास बात लिखी हुई है. ये जो गेम है, ये किसी गेम की बात कर रहे हैं, गो, जो एआई टेक्नोलॉजी पे यूज किया जाता है. अल्फा गो जो है ना ये, सो दे आर टॉकिंग अबाउट अ गेम अल्फा गो एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम विच बीट फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन गो प्लेयर ली सिडोल इन 5 गेम मैच. सो आई हैव नॉट प्लेड दिस. यू पीपल कैन ट्राई दिस गेम अल्फा गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर यू आर कैपेबल ऑफ प्लेइंग द गेम्स और विनिंग द गेम्स. तो आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ बताई गई है, क्लिनिकल ट्रायल मशीन्स के बारे में बताया गया. तो बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर रहा है. पहले हम लोग खेलते थे तो एक दूसरे के साथ खेलते थे गेम्स. अब आप लोगों को मालूम है, आप लोग जो गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर गेम्स, वो आप पबजी भी जैसे खेलते हैं बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. इससे पहले भी पबजी आया था या कोई गेम था मुझे मालूम नहीं है, दैट वर्क्स ऑन योर ज्योग्राफिकल लोकेशन.
कि आप वहाँ जाइए फिर ये गेम खेलिए, और कुछ इस तरह का एक गेम था, आई हैव नॉट रिमेंबर्ड द नेम. सो दैट वाज आल्सो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अच्छा, उसके अलावा गेमिंग का प्लेटफॉर्म दिया गया है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. उसके बाद आपको एक क्लिनिकल ट्रायल मशीन मैचिंग दी गई है. ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल मैचिंग सिस्टम दिया गया है. ये क्या करता है, ये बेसिकली मेडिकल लाइन में इसको यूज किया जाता है, क्लिनिक लाइन में यूज किया जाता है. ये क्या करता है, ये आपके डेटा को एनालाइज करता है. ठीक है, और इस डेटा को एनालाइज करके आपका जो क्लिनिकल रिव्यू है उसको प्रोवाइड करता है. जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेंगे, सीटीएम में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा प्रोवाइड किया जाता है मशीन को, और मशीन क्या करती है, कुछ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाती है. यानी कौन सी चीज़ को हमें फर्दर रिसर्च में इंक्लूड करना है, कौन सी चीज़ को फर्दर रिसर्च में इंक्लूड नहीं करना है. उन सारे बेसिस पे आपके लिए एक रिव्यू तैयार करती है, एक सिस्टम तैयार करती है, जिसमें आप ये देख पाते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो कितने इफेक्टिवली किया जा सकता है और कितने बेहतर तरीके से उसको किया जा सकता है. तो ये सारा जो एक सिस्टम बनाया गया है, ये क्लिनिकल ट्रायल मशीन में बनाया गया है. ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोगों को ईवा के बारे में मालूम ही होगा. इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट है ये. इसके बारे में हम पहले काफ़ी बातें कर चुके हैं, कई बार मैं बोल चुका हूँ आपको. ये जो है भारत की पहली चैटबॉट है बच्चों. इंडिया ने इसको डेवलप किया था ईवा को, और ये फर्स्ट चैटबॉट है. कब इसको लॉन्च किया गया, 2017 में. और किसने बनाया था इसको, आपने नाम सुना होगा, HDFC बैंक जो है. ठीक है, तो HDFC बैंक ने इसको बनाया था. और ये बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जैसे हम बोलते हैं ना, डेटा और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डेटा विजन, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है. तो ईवा जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करती है. वट एवर यू स्पीक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं, तो मतलब जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करना और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को प्रिपेयर करना, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है. तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के दो पार्ट मैंने बताए थे, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बताया था और एक प्रोसेसिंग वाला पार्ट बताया था. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, दो हिस्से मैंने बताए थे. ठीक है, तो ये HDFC बैंक ने बनाया था, ताकि एक चैटबॉट था जो आपकी क्वेरीज का आंसर करता था. 2017 में, 3 इयर्स हो गए. उसके बाद गूगल होम और नेस्ट, ये गूगल असिस्टेंट है. स्मार्ट स्पीकर्स हैं जैसे एलेक्सा वगैरह हैं. तो एलेक्सा के एग्जांपल नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है. एलेक्सा अमेजोन ने बनाया है. ठीक है, और गूगल होम जो है या नेस्ट जो है वो गूगल टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ एक सिस्टम है. ठीक है, और इससे हम जो भी क्वेरीज करते हैं या जो भी हम कहते हैं, इससे ये NLP पे काम करके उन सारी चीज़ों को ऑटोमेट करता है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वी कैन कीप it allows us to play music, control smart home gadgets, answer trivia questions and shopping list बतानी है, कैलेंडर बनाना है. तो ये सारी चीज़ें गूगल होम में बन सकती हैं. और ये सेम आइडिया, ये भी वर्चुअल असिस्टेंट है बच्चों, और अमेजोन ने इसको बनाया है. ये भी वही चीज़ है कि एलेक्सा प्ले गेम, एलेक्सा हाउ इज़ द वेदर टुनाइट, एलेक्सा के साथ कोई रिमाइंडर आप दे देते हैं, रिमाइंडर कर दे देते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. इवन यू कैन बुक अ कैब ऑल्सो. ठीक है, ये सारी फैसिलिटी हमको मिलती है. तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले 5, 7, 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से. ऑलराइट, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और ये थोड़ा सा लंबा चलेगा हमारा, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये रिलेट करना है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं तो हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा बच्चों. अगर हम अपनी लिविंग को स्मार्ट करना चाह रहे हैं तो हमें अपने घरों को स्मार्ट बनाना पड़ेगा और सिटीज़ को स्मार्ट बनाना पड़ेगा. राइट, ये 2 आइडिया हैं जिन पे हमें काम करना है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेट, हाउ कैन वी रिलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू आवर डेली लाइफ. अच्छा, एक बात और, मैंने कल आप लोगों को एक वो शेयर किया था, IoT के ऊपर हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं. तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था, मंडे को है मेरे ख्याल से, 12:20 पे है वो. तो हालांकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि सारे बच्चे आएँ, बट सिलेक्टेड स्टूडेंट चाहते हैं. आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बट बेहतर ये रहेगा कि जो एक्टिविटीज़ आपको दी हैं अगर आप उनको करते हैं तब उसके बाद ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बिकॉज वी हैव अ लिमिट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, सो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. सो हम चाहते हैं अच्छे बच्चे आए हमारे पास, जो उस सेमिनार, जो भी वेबिनार हो रहा है उसका पार्ट बने और सीखें उससे. ऑलराइट, तो ये ज़रूर करें आप लोग. ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट जो आइडिया है वो ये है दैट हाउ कैन वी
वर्क विद स्मार्ट होम्स टू स्मार्ट सिटीज, राइट। चीज़ों को हम कैसे स्मार्ट बनाएं, और जब हम घरों को स्मार्ट बनाएंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा कि हमारा सिटी विल बी स्मार्ट। ओके, नाउ components of smart city include smart people, smart governance. Smart governance means there must be some good system by which we can be secured with our houses. Smart home, smart infrastructure, smart technology, smart ecosystem, economy, mobility, smart living and smart environment. तो किस किस पे काम कर रहे हैं? स्मार्ट लिविंग पे। स्मार्ट लिविंग का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर सारी चीज़ें एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी जहाँ पर हम रह रहे हैं हमारे घरों का जो बनाने का तरीका है वो स्मार्ट हो। इकोसिस्टम स्मार्ट होना चाहिए हमारा। इकोनॉमी का मतलब फाइनेंशियल स्टेटस हमारा स्मार्ट होना चाहिए। हमारे पास मोबिलिटी की फैसिलिटीज़ हों। मोबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर हम कहीं जाना चाहें तो जैसे हमारे पास कॉल करें तो हमारे पास कार अवेलेबल हो, इस तरह की चीज़ें हमारे पास हों। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, जरा वेट करो। ओके, चलिए, जरा बीच में कुछ ब्रेक आ गया था बच्चों। सो ये सारी चीज़ों को हम मिला करके एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि हम अपना एक स्मार्ट सिटी और एक स्मार्ट होम डेवलप कर सकें। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जा रही है बच्चों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बिग डेटा। ये 2 टर्म टेक्निकल टर्म है और इंटरनेट ऑफ डेटा, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। नाउ इन दोनों को समझो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और बिग डेटा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम सीखना चाहते हैं हमारे स्मार्ट होम या स्मार्ट सिटीज को कैसे डेवलप किया जाता है। ओके, बिग डेटा का मतलब क्या होता है? बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना जिससे सब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को बनाया जा सके। बिग डेटा मीन्स ह्यूज डेटा स्ट्रक्चर, ह्यूज टेस्ट केसेस, ह्यूज पास्ट डेटा। ऑन दैट डेटा वी कैन डेवलप समथिंग न्यू, राइट? दैट इज कॉल्ड बिग डेटा, राइट? बिग डेटा बहुत सालों का डेटा भी हो सकता है बच्चों, 4 साल, 5 साल, 10 साल का भी डेटा हो सकता है जिसको एनालाइज किया जा सके। एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या हुआ? इफ वी कैन प्रोवाइड थिंग्स ओवर इंटरनेट टू फैसिलिटेट अदर्स। और इन दोनों टर्म्स को मिला करके इंटरनेट ऑफ डेटा बना दिया गया है, इंटरनेट ऑफ डेटा। सो ये हमारा स्मार्ट होम का बेसिक स्ट्रक्चर है। हमें स्मार्ट होम के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए जो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, और ये कैसे डेवलप की जा सकती हैं? विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड इंटरनेट सर्विसेज, और इनको एनालाइज करके हम स्मार्ट सिटीज या स्मार्ट सिटीजन्स को डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब स्मार्ट बिल्डिंग और स्मार्ट बिल्डिंग डेटा टू स्मार्ट बिल्डिंग सिटी, स्मार्ट सिटीज, ये हमारा एक नेक्स्ट आइडिया आता है इसमें कि स्मार्ट बिल्डिंग डेटा क्या है और उससे हम स्मार्ट सिटीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों कि जैसे जब भी हम किसी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं या स्मार्ट बिल्डिंग की बात करते हैं या स्मार्ट हाउस की बात करते हैं, होम की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो आइडिया होता है इसमें वो ये होता है कि एनर्जी कंजम्पशन मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम और बेटर वर्ड इज ऑप्टिमम होना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, एनर्जी का कंजम्पशन है, वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे हर समय आपसे कहा जाता है सेव एनर्जी, सेव एनर्जी। तो सेव एनर्जी का आइडिया क्या है? अब या तो आप इसको मैनुअली कीजिए या डेवलप अ सिस्टम इन विच यू कैन सेव, डेवलप अ सिस्टम इन विच यू कैन सेव योर एनर्जी। सेव एनर्जी, अब चाहे इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने की बात है या कोई भी एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, सबको सेव करने की बात हमारे पास हो रही है। तो उसके लिए बहुत सारे गैजेट्स हैं, आप लोग जानते होंगे। मोबाइल्स के थ्रू हम लाइट्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, हम एसीज को मैनेज कर सकते हैं। सो देर आर सर्टन होम अप्लायंसेज विच कैन बी मैनेज्ड बाय दिस मोबाइल फोन ओनली। अच्छा, स्मार्ट लाइटिंग का एक आइडिया होता है। स्मार्ट होम एंड बिल्डिंग यूज स्मार्ट लाइटिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन रिड्यूस करता है। अब ये क्या करते हैं, जहां पर लाइट की जरूरत है केवल उसी एरिया में लाइट जलाएंगे, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। ये कंप्यूटर्स की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से किया जाएगा। जहां पर जरूरत है वहीं पर लाइट ज़्यादा रहेगी, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर लाइट नहीं रहेगी। एक आजकल एक डिवाइस आ रही है, इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 600-700 रुपीज़, and you just plug it into your electricity board, so when you walk into the room then only those lights will turn on, otherwise light will turn off automatically। आप कमरा छोड़ दीजिए, लाइट अपने आप बंद हो जाती है। तो इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं, दैट इज सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट इज स्मार्ट कैमराज।
स्मार्ट कैमराज भी काफ़ी यूज किया जाता है बच्चों, इवन आजकल फॉरेस्ट में जानवरों की देखभाल करने के लिए, एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए भी ये स्मार्ट कैमराज यूज़ किए जा रहे हैं। इनका आइडिया बहुत सिंपल है। अगर कोई भी इनके सामने नहीं आ रहा है तो ये एक तरह से इनएक्टिव रहते हैं, हाइबरनेटेड रहेंगे, एंड इफ सम एनिमल इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, राइट। सो इस तरह से भी स्मार्ट कैमराज लगाए जा रहे हैं, और ऐसे ही सोसाइटीज़ में भी लगाए जा रहे हैं ताकि जो लोग अननोन हैं, दोज हु आर वॉकिंग इन थ्रू द सोसाइटी, उन पर एक ध्यान रखा जा सके। ठीक है। सो आज हमने पढ़ा अभी एनर्जी कंजम्पशन के बारे में, ताकि हम अपने घरों को स्मार्ट बना सकें, और उसके बाद हमने पढ़ा स्मार्ट कैमरास के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज हेल्थ मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं बच्चों, दे आर रिलेटेड टू दोज थिंग्स ओनली, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से हेल्थ मैनेजमेंट में हमारा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी है, जैसे डॉक्टर्स कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर पेशेंट्स एनी टाइम इन देयर होम। आजकल भी जैसे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो यहाँ पे डेटा कीपिंग का सिस्टम है कि अगर मान लीजिए आपके पास आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आजकल आप लोग शायद जानते भी हो, देयर आर सर्टेन टूल्स in which you provide your information and they will tell you that what type of disease you have or what is the treatment for that particular disease. So ये सब डेटा को मैनेज करके एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है। Similarly, next idea is water management. You know the meaning of moisture sensor? आप लोग कितने लोग जानते हैं the meaning of moisture sensor? Can anyone tell me the meaning of moisture sensor? It is sensing मॉइस्चर मीन्स वाटर को सेंसर करने वाला कुछ डिवाइस होगा ये। ओके, तो ये भी लगाया जाता है कई जगह, और इससे क्या होता है, हम वाटर को सेंस कर सकते हैं कि कहीं किसी घर में कोई लीकेज तो नहीं है, सीपेज तो नहीं है, और उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। हमने एक सिस्टम लगाया घरों में जहाँ पे कहीं पे भी सीपेज होगा या कहीं पे भी लीकेज होगा, ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको मॉइस्चर सेंसर बोलते हैं, जिसकी हेल्प से ये किया जाता है। अच्छा, अब उसी को मैं समराइज कर रहा हूँ जो भी हमने ऊपर पढ़ा, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर स्मार्ट सिटीज़, जहाँ जिनको अगर हम ध्यान रखें तो हम वी कैन डेवलप अ स्मार्ट सिटी। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन पर अगर आप काम करते हैं, बिल्डिंग्स पर काम करते हैं, चाहे बिल्डिंग्स में आप मॉइस्चर सेंसर लगाएं या फिर स्मोक सेंसर्स लगाएं, इस तरह की चीज़ें लगाएं जिससे आप एक स्मार्ट बिल्डिंग को बना सकें। उसके बाद आप यूटिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर कीजिए, बेहतर कीजिए एनवायरनमेंट को, पॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, वाटर फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब भी आप लोग जानते होंगे, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको मैनेज करना। सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी मैनुअल भी हो सकती है, एंड दिस सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग कैमराज और सम सेंसिंग डिवाइसेस, और उसकी हेल्प से भी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। You know, there are certain cameras which are directly broadcasted to your mobile phone. There are certain websites you can provide those cameras, and those cameras will provide you online or real time recording of your system to your phone. So these are called smart citizens. These are called smart devices or smart security system. Now this is a exercise activity for you. एक फ्लोर प्लान डिज़ाइन करना है। आपने जो पिछला बनाया था, आई एम नॉट श्योर कितने बच्चों ने बनाया है, उसी के बेस पे आप एक अगले वाले सिस्टम को तैयार करेंगे। तो यहाँ लिखा है शेयर योर आइडिया अबाउट स्मार्ट होम एंड राइट देम डाउन इन द बॉक्स। ठीक है, आप एक सिस्टम तैयार करें, जो भी आपने पुराना अपना सिस्टम तैयार किया था, पुराना जो घर तैयार किया था, उसी में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप करेंगे उसको आपको प्लान करना है। ठीक है, ये एक सर वो ड्रॉ करना है सर, ये स्मार्ट होम ऑब्वियसली बेटा ड्रॉ करना है उसको। ओके ठीक है, ओके। और अब क्या चेंजेस करेंगे आप, ये रिलेट चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या चेंजेस करेंगे, ये भी आप इसमें यहाँ पर मेंशन करेंगे। कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो आपने उस समय इंक्लूड नहीं की थी और अब आप उसको इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस समय इसको कर देते तो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता। जिस समय आपको जो काम दिया जाता है बेटा, उस समय कर लिया करो। और आप जानते हैं कि वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क देने के उसमें नहीं रहता हूँ। आई लाइक दैट 1-to-1 वी आर स्टडिंग, तो उसी समय हम अपना मैक्सिमम काम कर लें। तो आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप पुराना वाला जो बनाया है उसके बाद आपने नए चेंजेस जो करने हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि उसके जो हमने बनाया था अब उससे बेहतर इसमें क्या किया जा सकता है।
ओके, सो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दी हुई हैं, कुछ वीडियोस आप लोगों को दिए हुए हैं। ये प्रेजेंटेशन में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। यहाँ पर देखो बच्चों, 2 वीडियो हैं, ये लिंक है इसमें। जब आप इस प्रेजेंटेशन को खोलेंगे तो आपके पास ये 2 लिंक आएंगे, राइट। इन दोनों को आप देखना, इन दोनों वीडियोस को आप देखोगे। जब आप क्लिक करोगे तो ये वीडियोस खुल जाएंगे आपके पास, ठीक है। सो यू जस्ट ओपन दीज वीडियोस एंड सी दैट व्हाट इज देयर, और आप अपने फ्लोर प्लान को फिर से रीड्रॉ करेंगे। अब वीडियो को देखो, क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वेदर दे आर मैचिंग इट और नॉट। अब इसको करना क्या है, यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाया हुआ है, देखो इसमें लिखा है आइडिया ऑफ योर स्मार्ट फ्लोर प्लान हेयर एंड अ स्मार्ट होम एज सीन इन द वीडियो हेयर। तुमने एक होम बनाया, स्मार्ट होम बनाया, और एक स्मार्ट होम वीडियो में दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी है जो आपके पास स्मार्ट होम में दिखाई गई हैं। आपको यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी है जो आपने जब स्मार्ट होम बनाया था तो लिखी थी, और यहाँ पे वो चीज़ें लिखी है बीच वाले एरिया में जो आपके स्मार्ट होम इस वीडियो में भी अवेलेबल है और आपने जो प्लान किया था उसमें भी अवेलेबल है। इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। समझ में आएगी वेन डायग्राम क्या कह रहा है? आपने जो Yes, sir. प्लान बनाया था वो यहाँ लिखो, जो वीडियो में देखा वो यहाँ लिखो, और जो दोनों में कॉमन है उसको यहाँ पर लिखो, राइट। सो दिस इज योर नेक्स्ट एक्टिविटी। हमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी है बच्चों, और इनको हम सीक्वेंशियली करेंगे। अब यहाँ पे वर्कशीट 3 है आपके पास। Here are some smart system which is given based on the smart home in smart cities. Use green color to fill the box if a given system will be used to smart home, and red if the given system is not to be used in smart home. तो आप red और green की जगह true false भी लिख सकते हैं, ठीक है। This is your next activity. Now अब अगला आपका एक गेम है, ये भी एक ऑनलाइन एक्टिविटी है। ये ऑनलाइन एक्टिविटी है, एक LUIS करके एक गेम दिया है इन्होंने, ठीक है। हालांकि ये गेम तो मैंने भी अभी ट्राई नहीं किया है। दिस इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज नेचुरल प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर है ये गेम बच्चों। तो अब इसको ट्राई करो, मुझे भी बताना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आई एक्सप्लेन, आई फाइंड इट। और एक कंप्यूटर विजन के ऊपर है। कंप्यूटर विजन के ऊपर इन्होंने कौन सा गेम दिया हुआ है? दिस इज अगेन बेस्ड ऑन कंप्यूटर विजन। तो ये कट्स आपको दिए हुए हैं, ये आप कट्स ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो लास्ट स्लाइड है हमारी रिलेट की, दैट इज ऑफ स्टोरी स्पीकर, राइट। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। स्टोरी स्पीकर आप लोगों को गूगल की एक फैसिलिटी है, यहाँ से ये लिंक दिया है मैंने, इस लिंक के थ्रू आप इसको इंस्टॉल करेंगे। जो भी लोग मोबाइल में करना चाहें वो मोबाइल में भी कर सकते हैं, जो लोग लैपटॉप में करना चाहें वो लोग लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। यहाँ पे हमारा रिलेट का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है।